वेलकम टू टेकिंग इट स्लो पीपल। विशु, क्या हाल चाल? यार मेरे तो बहुत सही हाल है यार। इतना सही डायरेक्शन में जा रहा है देश। मैं तो हाँ। काफी खुश हूँ। हाँ, कितने किस सही किस सही। चीज से खुश है तू? मैं तो 5 अगस्त से इतना खुश हूँ। और अभी फार्मर्स का कल्याण होने वाला है यार, कि हाँ इतना यार, सही बिल पास हो रहा है। हाँ, पास हो चुका है। कैपिटलाइजेशन पास पे जा हो रहे हैं। चुका है। पास हो रहा होता तो फिर तो डिस्कशन पॉइंट ही क्या था? डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी वी विल बी टॉकिंग अबाउट द farmers bills protest and the supposed weird nature in which the bills were passed today. We are welcoming back a very special guest on this podcast, Devanik, who I am sure you would all remember from the episode that we did on journalism. He's a notable columnist for The Wire, News Laundry, News 18, etc., etc. I'm sure I can go on and on about listing his accomplishments, but he's joining us back on this hotly For some contested issue. Welcome, Devanik. Welcome to the pod, man. थैंक यू दुजिंदर एंड अदर। काफी सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी बिल्स को लेकर। क्या बिल्स हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स सही है कि नहीं है, क्या गवर्नमेंट एक्चुअली फार्मर्स का भला चाहती है ये बिल्स निकालने में? सो we'll be discussing about that in this pod. Just to set an overview, 3 bills have been passed in the Rajya Sabha this last week itself. just before we start the discussion, I have a few questions. ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जिसके वो सिंगल वर्ड आंसर होंगे, so that our audience gets to know what our leanings are. ठीक है? Leanings in terms of You'll get to know with the questions. So left leaning, right leaning, वो सब। हाँ, मतलब अच्छा। when the Ram Mandir decision came out, about not today's decision, वो पहला वाला कि हाँ राम मंदिर बनेगा. So were you on the happier side or the sadder side? You and Devnik, both of you. I am on the safer side. I'm just joking. Of course, I'm on the yeah. On the sadder side. Yes. I was indifferent honestly, so doesn't affect my life directly. So ठीक है, बन रहा है तो I was a little disturbed by the euphoria that surrounded the decision कि इतना क्या बड़ी डील है भाई. Okay, then yes, you I are was a also little on the sad. negative. If you are not on the happier side, you are on the You are either with negative us or side. against us. Okay. Yeah. And one more, when the JNK decision came out last year on August 5th. Honestly, देखो, any bill, whether it be the JNK or whether it be the farm bill, the real issue is that the real core problematic thing is that the government doesn't focus on discussion or debate. Yeah. It bulldozes everything. Like whatever I believe on 370 is irrelevant, or whether it may be a good thing, it may be a bad thing, right? But what evidence suggests is that, of course, KETA has led to a lot of suffering for the Kashmiris, so that is uncontested. But in any case, people whom you are aiming to work for, in that case, the Kashmiris, in this case, the farmers, you're not involving them in the discussion. अब आपने एक दिन उठ के बोल दिया कि भैया आर्टिकल 370 हट गया, आपने एक दिन उठ के बोल दिया कि फार्म बिल्स लगाना है without and bulldozing it through the parliament, both the laws, both in both the cases. So the core issue, and even in the Hathras incident and everything, I think even these three are completely different domains. मुद्दा ये है कि भाई हमें जो करना है हम करेंगे, बाकी भाड़ में जाए। मैं जो रूम में बैठ के डिसाइड वही करूंगा। ये है रियल इशू, प्रॉब्लम। हाँ. More than the merits, that's true. That's true. More than the merits of each argument, whether you support farm bills or not, or whether you support Article 70 or not, the main real issue is the कि यार आप मतलब democratic ideals और principles को पूरा खत्म कर रहे हो. That is I think the common three things between these things. बहुत ही सही कॉल बैक भी है इस पे ना, हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में व्हेन आई ब्रॉट अप कि डेमोक्रेसी को भी लोग ऐसे गाली देने लग जाएंगे क्या, क्योंकि अब धीरे-धीरे वो होता जा रहा है। हाँ, वो होता जा रहा है कि क्या डिस्कशन करना है। अभी जैसे कुछ दिन पहले कुछ पीएम केयर्स फंड की बात हो रही थी, तो पीएम केयर्स फंड में मैंने ट्विटर पे मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसमें मैं यही बोल रहा था कि तुम एनजीओस के लिए एक रूल बना रहे हो भैया, तुम एनजीओस को बोल रहे हो कि इतना % पैसा हम यूज करना है, इतना रिस्ट्रिक्शन है, और पीएम केयर्स फंड के लिए तुम कहीं से भी पैसे ले रहे हो भैया, तो मैं कहीं से भी लूं। तुम मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हो? तुम ऑडिट करने वाले कौन होते हो? मतलब इट इज नॉट अ एक बंदा मुझे ट्वीट करता है कि पीएम इंडिविजुअल है, वो तो गवर्नमेंट लोग उसको पैसा दे रहे हैं, तो व्हाई इज ही अकाउंटेबल? अब इसमें क्या जवाब दोगे आप? तो ये है असली प्रॉब्लम, ये है, और it is gone beyond a point where you could joke about it. Yeah, I can actually really relate to that. So आज ही हमारे एक ग्रुप पे कॉन्वर्सेशन हो रहा था about when the verdict came out. We were expressing thoughts. I was, and especially जब ये कल रात को हाथरस वाला इंसिडेंट हुआ, my first thought, which is usually not this case, my first thought was I'm a little scared now. The government is showing that it can do what the hell they want. Whatever they want they can do, and there is nothing stopping them. मुझे नहीं पता कि कल को मेरा कोई 3 साल पुराना ट्वीट जिसमें मैं गाली वाली दे रहा हूँ वो उठा के मुझे अंदर कर सकते हैं, एंड कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए. I think that is what they are aiming for. You speak in the line of the government.
अब तुम वो देख लो, ये ड्रग केस वाला, अब उसमें तुम यू आर टारगेटिंग एवरीवन हु हैज स्पोकन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। या अब ऐसे थोड़ी है कि भैया दीपिका को क्यों किया बाकी लोग टारगेट? drug नहीं करते, दीपिका को बाकी लोग मतलब रणवीर को नहीं किया और दीपिका को किया। हाँ, रणवीर को नहीं किया, दीपिका this को so किया, ironical, मतलब वही ये वही तो क्योंकि वो काफी जाके खड़ी हुई वियर्ड। है। कोई आंखों वाला इंसान देख के बता सकता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ड्रग्स लेता है। नहीं यार, आजकल आंखों पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे को आज के जो वर्डिक्ट आया है सीबीआई का कि बाबरी मस्जिद किसी ने भी नहीं तोड़ा, तो आजकल कोई कुछ नहीं बता सकता। दीपिका जाके भैया प्रज्ञा ठाकुर ने प्रोटेस्ट में बैठी थी शालीन बाग में, इसलिए दीपिका के ऊपर इंक्वायरी चल रही है। हाँ अब भैया प्रज्ञा ठाकुर ने खुद बोला था कि मैं जाके बाबरी मस्जिद तोड़ के आई थी। हाँ मैंने सुप्रीम ढांचा कोर्ट तोड़ा, में हाँ उसका इंटरव्यू था ऑन एयर, मैंने ढांचा Yeah. तोड़ा, मैं बहुत प्राउड हूँ उसको लेके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं तूने नहीं तोड़ा बहन, तुझे नहीं पता, तूने नहीं तोड़ा, तूने नहीं देखा, तू हैलुसिनेट कर रही थी। हमारा ऑफिशियल टॉपिक होना था फार्मर्स बिल। यस, यूजुअली दैट इज नहीं माय भाई, रोल। कनेक्टेड है। देखो ना विवेक फार्म एक्सपर्ट है, ना मैं फार्म एक्सपर्ट हूँ, ना दुनिया फार्म, बट द कोर इशू इज इन ऑल दीस केसेस द हॉरिफाइंग सिचुएशन व्हिच इज इन इंडिया in terms of the erosion of democratic principles। कोई भी केस देख लो, उसमें तीनों में से तुम जितनी भी बातें करो, उसमें कोर थ्रेड क्या है कि there are 2-3 things। One is कि यार कुछ भी कर, we'll do whatever we want, will not seek anybody's consensus, and we want everybody to toe our line। For all this, are the only politicians to blame? No, not the at people all। are also to blame यार। अरे it is our deep rooted bigotry that is coming out to the fore, the lack of education that is coming। ये तो है। lack of education में नहीं यार, तुम lack of education क्या बात कर रहे हो? लोग यार education से I mean lack of sensitivity to other races, to other religions, that is what I mean by education, not degrees or diplomas। It is a deep rooted bigotry which is there inside most of us। yes। हाँ, जो अब तक लोग शो नहीं करते थे, but now they're like maybe we'll be rewarded if we show it and we are more open to show it। rewarded plus देखो it's like a fault line which मतलब जैसे कि अब जैसे बहुत लोग जो तुमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा ये बात करेंगे, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कि मुस्लिम्स को मार दो और ये कर दो वो कर दो, and that is something, देखो it has been थोड़ा बहुत it has been achieved on the basis of WhatsApp propaganda। People are actually okay with it, especially the middle class and the lower middle class। People are actually okay कि बोलते हैं हाँ मोदी, अगर I am pretty sure कल अगर मोदी इलेक्शंस हटा देता है, which he won't, which we discussed in the last podcast, but अगर हटा देता है people will actually support him। We were discussing that this line hit so hard to me today। We talk about Hitler and the concentration camps। It's like कि concentration camps weren't built in a day। पहले ideology built हुई थी पूरे country की। हाँ, there are 7 stages। वो stages की बात होती है कि there was this chart which I saw। I can see us going through those stages, at least the first 3 or 4 जो भी होंगे वो। बट आइडियोलॉजी तो ऐसा होता ही जा रहा है, एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो आइडियोलॉजी भर रहा है यार, लेकिन ना इंस्टीट्यूशंस पब्लिक के अंदर तो है ही नहीं। एंड यू विल आल्सो सी दैट कि देखो 2014 का टर्म वाज स्टिल फार लाइटर in terms of हिंदुत्व। 2019 वाले के बाद दे हैव बीन सो प्रोएक्टिव इन देयर एजेंडा। तो मुझे लग रहा है कि भैया अगले 1-2 साल में वो और भी चीजें, यूनिफॉर्म सिविल कोड और भी क्या-क्या चीजें कर लेंगे, तो उसके बाद बचेगा तो उनके कोर प्रोमिसेस में तो कुछ बचेगा नहीं। राम मंदिर भी बन गया, मतलब उसके बाद विल बी फर्दर डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उसके बाद जब आपके कोर इशू सॉल्व होगा तब क्या करोगे? इकोनॉमी से तो आप ध्यान हटा रहे हो ये सब चीजें करके, बट ये सब चीजें जब हो जाएंगी, वही जो तुम 7 स्टेप की बात कर रहे थे कि वो 8 और 9 स्टेप जो भी होगा उसमें आ जाएगा। And I totally believe कि we will go down that path, then people will realize and it will again start from zero, like it happened in the case of Germany। I really like your optimism। But India is firstly कि India is the world's largest democracy, that is one। If not anything else good one। US में फिर भी जैसे last time I think we discussed also कि US में मतलब it may not be perfect democracy, but there are some checks and balances कि मतलब you can still say something and then not be jailed or not be। checks and balances तो यहाँ पे भी होने थे ना, हमारे राज्यसभा को checks and balance करना था कि फार्मर्स बिल पास ना होने दे। राज्यसभा से याद आया हमारा एक्चुअली एक कोर टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि उसको पास नहीं होने देना, लेकिन वो पास हो गया। फार्मर्स बिल, दे सेंसर्ड द चेक्स एंड बैलेंसेस इन इंडिया। राज्यसभा में कैसे पास हुआ उसके बारे में लेट्स हैव अ कंप्लीट सेगमेंट कि ये हुआ फिर ये होना चाहिए, उस पे आते हैं। लेट अस स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द कोर इश्यूज व्हिच इज व्हाट द बिल इज एंड व्हाट इट चेंजेस। For those who don't know, 3 बिल्स हैं। पहला बिल है जिसको कहते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, जो कि एसेंशियली कहता है कि जो अभी तक एपीएमसीज में तुम जाके ट्रेडिंग करते थे, अब तुम पैन इंडिया कहीं भी कर सकते हो, कोई बैरियर्स नहीं है उसके ऊपर। सो इट एसेंशियली रिमूव्स द बैरियर्स व्हिच द एपीएमसी पुट। सो एपीएमसी इज नॉर्मल भाषा में मंडी, जो मंडी में फार्मर्स लाके सामान बेचते थे, वो अब जाके कहीं भी बेच सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है अभी,
1950 से जो चलता आ रहा है, जो फार्मर खेत में जैसे मान लो गेहूं बनाएगा, चावल कुछ उगाता है, वो लाके मंडी में एक मिडलमैन पकड़ता है, मिडलमैन जाके फिर उस दुकान को बेचता, किसी दुकान को बेचता है जो दुकान से हम खरीदते हैं। यार जब आप ऐसे रिसर्च करते हो बड़े क्यूट लगते हो। बिल्कुल डिटेल में जब बताते हो। ओके, मिडलमैन भी ऐसा कुछ नहीं है कोई खराब चीज है, जैसे कोई दुकानदार जाके खेतों पर तो खड़ा होगा नहीं, तो उसके लिए बीच में एक मिडलमैन चाहिए, तो उसका भी एक रोल है। ये मिडलमैन भी लाइसेंस्ड होते हैं गवर्नमेंट से, ऐसा नहीं कोई भी जाके कल को तू या मैं जाके मिडलमैन बन सकते हैं। मंडी का फायदा ये है, मंडी में एमएसपी लागू होता है, एमएसपी इज मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्रॉप्स के लिए। मुझे लगा मोदी सेलिंग प्राइस है। वो भी हो सकता है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद एपीएमसी एज वेल, काफी 1950 से चल रहा है। कार्टलाइजेशन हो गया है बहुत ज्यादा मिडलमैन का, मिडलमैन काफी ज्यादा शेयर रखने लगा है अपने पास, एंड जहां पे भी कार्टलाइजेशन होगा द स्मॉलर फार्मर्स विल बी मार्जिनलाइज्ड। नाउ what is the change that the bill is proposing? The bill is now saying that there is no need to sell in the APMCs and you can sell directly to a final consumer or a final corporate or a conglomerate giant. इसका इंटेंट ये है गवर्नमेंट के हिसाब से कि मिडिलमैन के पास जो पैसा जाता था वो डायरेक्टली फार्मर्स को मिल जाएगा, तो फार्मर्स कैन सेल एट अ बेटर प्राइस। दैट इज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल्सो जैसा काफी बोला जा रहा है स्पीचेस में कि अक्रॉस द कंट्री अब कहीं भी तुम इसको बेच सकते हो, कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। Another problem with this the APMC wala system was only 6% of the total farmers were able to take the benefit of MSP according to the last survey that was done. Why was this? Because government release करती थी prices, MSP release करती थी 22-23 तरह के crops के, but eventually जो government खरीदती थी after the auction etc that used to take place in APMC, वो खरीदती थी mainly 2-3 grains, जैसे जो main commodity होती है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, mainly वही खरीदती थी। तो काफी सारे फार्मर जो बाकी का क्रॉप्स उगाते हैं वो एमएसपी पे तब भी नहीं बेच पाते थे उसको, ठीक है। सो ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स वर एबल टू सेल इट एट एमएसपी। दीज वर द फ्यू प्रॉब्लम्स दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम हैड। नाउ विद द चेंज, व्हाट द फार्मर्स आर एक्चुअली अपोजिंग इन अबाउट दिस बिल इज, नंबर वन, if the corporates are directly in touch with farmers, there are a lot of farmers who have substantial amount of produce, who have big enough farmlands, but 85% of India's farmers have less than 2 hectares of fields. Yes. ठीक है, ये तुमने सही मारा। ठीक है, सही यार। Small and marginal farmers. Small and marginal farmers. So अब उनको प्रॉब्लम क्या आएगा? जो बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास बड़ा लैंड है, they have a higher produce to offer, वो अपने प्राइसेस नेगोशिएट कर सकते हैं कंपनीज के साथ, ठीक है। लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास मैक्सिमम कितना रहेगा? 1 टन रहेगा उनके पास सेल करने को, तो जो कंपनीज उनको प्राइस सेट करेंगी उसको उनको बेचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों का नेगोशिएटिंग पावर एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन एमएसपी भी तो रहेगा यार। नहीं, मेरे को दैट्स द होल थिंग। एमएसपी नहीं रहेगा। नहीं, वही तो डिबेट है, वही दैट इज द कोर इशू कि एमएसपी अब गवर्नमेंट कह रही है कि इट विल एमएसपी विल स्टिल रिमेन, राइट। तो कुछ फार्मर ग्रुप्स का डिमांड है कि व्हाई डोंट यू लीगली गिव अ गारंटी कि एमएसपी विल रिमेन। गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू, हाँ, the government is not giving the commitment कि मतलब legal commitment कि MSP रहेगा। तो मोदी ने अपने ट्विटर से भी ट्वीट किया था कि मैं आश्वासन देता हूँ। Of course that is not, people didn't accept it. A lot of parties have actually supported the bills in the past who are opposing it now, like Congress या NCP हो गया। On paper it's a very good bill, I would say. Yeah, free market, it is free market yeah. But the problem is कि India is not a free market. मेरे को तो सही लगा ये बिल। मेरे को लगा कि ठीक है, दो चीजें हैं, फ्री मार्केट कर रहे हो और देख फ्री मार्केट इंडिया, लेकिन फ्री मार्केट है नहीं ना। हाँ नहीं है, लेकिन मतलब you are moving towards it. You are moving towards it. So I am not taking any side right now. I am just trying to tell you कि बिल क्या कहता है, उसमें फार्मर्स को एजिटेशन किस किस चीज के लिए है, ठीक है। फार्मर्स को सबसे बड़ा एजिटेशन है कि तो कॉर्पोरेट आएगा तो आके मुझे मार्जिनलाइज करने का ट्राई करे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज प्राइवेट वाली जगहों पे कोई टैक्स नहीं रहेगा, जो मंडी में इनको टैक्स देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मंडी में कोई क्यों जाना चाहेगा, कोई भी बड़ा कंपनी है ना, सबके सब प्राइवेटली जाके नेगोशिएट करना चाहेंगे। तो मंडी में जो जाके उनको एक एमएसपी का फिक्स का एक कुशन था वो खत्म हो गया, तो धीरे धीरे करके इवेंचुअली मंडी खत्म हो जाएगी। दिस इज वेयर इट विल लीड टू, दैट इज देयर कंसर्न। थर्ड, जो रिमूवल ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की तुम बात कर रहे हो, छोटे फार्मर्स को ट्रैवल प्लस स्टोरेज प्लस लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट इतना पड़ेगा टू ट्रैवल टू अनदर सिटी और अनदर स्टेट,
उनके लिए फिजिबल नहीं होगा। जो तुमने बहुत से एग्जांपल दिया, ये तुमने बहुत से एग्जांपल दिया। ये इस किसी ने लिखा भी था कि केरला में ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब एपीएमसी उसको 10 रुपए पर उसमें दे रहा था, ठीक है, कुछ एग्जांपल ने लिखा था, एंड द प्राइवेट कंपनी वाज गिविंग फॉर 40 रुपीस, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी वो गवर्नमेंट की गाड़ी आती है, वो उठाती है और वो सब है, और प्राइवेट में वही चीज फार्मर को करनी पड़ती है, राइट फ्रॉम मतलब पूरा कैरी वैरी करना। तो नाउ द सेम फार्मर हु वाज अर्निंग 10 रुपीस पर किलो, ही इज अर्निंग नाउ 4 रुपीस पर किलो। These are the farmers' problems with the free trade wala bill. Stated objective of the bill is good. My problem with the bill is firstly how it was passed. Of course, that is a very core we'll issue. come to that separately. Yeah, that is a whole discussion in itself. Yeah. Another issue is that I don't trust the government because the government can throw anyone under the bus. Jio का ही देख लो, and of course I'll take the example because वही problematic है इसमें. तो जैसे आप Jio का example देखो, in the telecom sector, the way the laws have been twisted and Jio have been favored, similar thing will happen here. If it truly was a free market, then it would have been, I would have still supported it. But it is truly not a free market, and laws are bent through support, and eventually यही होगा कि farmers may, I mean, again, it is speculation, but eventually it will be the monopoly of one or two companies. That is the real issue. Yep. And they will decide the prices, not the farmers. The laws will be twisted to help the corporates, just like it was done in the case of airport acquisition of Adani's. ठीक है कि देखो, correlation is not causation, but इतने सारे एविडेंसेस हैं, जैसे कि जो मुंबई एयरपोर्ट वाला था। अब जो मुंबई एयरपोर्ट का जो ओनर था, कौन सा था? जीवीके ग्रुप। अब जीवीके के नीचे सीबीआई भेजी गई थी। हाँ, क्या हुआ था मेरे को पता नहीं है क्या हुआ मुंबई एयरपोर्ट पर। सीबीआई ने दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट जीवीके कि दे हैव मतलब 800 करोड़ रुपए दे शोड लेस इन रिसीट्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऐसा कुछ था कि दे मतलब मिसकैलकुलेटेड रिसीट्स और ये सब। एंड अराउंड द सेम टाइम अदानी वांटेड टू बाय एयरपोर्ट यहाँ का, मुंबई का। तो जब से दे हैव कंसेंटेड टू द सेल ऑफ द एयरपोर्ट, वो केस में कुछ बड़ा नहीं आगे, राइट? तो यार देयर आर टू मेनी एविडेंसेस टू प्रूव कि दिस गवर्नमेंट कैन नॉट बी ट्रस्टेड एट ऑल इन एनी कॉन्टेक्स्ट। आई मीन देयर आर अदर चैलेंजेस एज वेल व्हिच, एंड दिस इज नॉट द ओनली चैलेंज, आई वुड से द अदर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस व्हिच Dujendra explained, but the idea of the bill is good, but it needs to be better discussed with everybody and gather more inputs from people, that is, and from experts. That is a real thing. Basically one simple solution is कि जो farmers ये बोल रहे हैं कि तुम legally बोल दो कि minimum वो MSP रहेगा हर तरह के ट्रांजैक्शन में। कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है। We can't rule out the possibility कि the protests that are happening are really happening because someone, people who are really powerful are getting hurt. हाँ, जो middlemen है, maybe they are going, मतलब their business is really going to be hurt, so they have motivated the farmers. तुझे क्या लग रहा है middleman will go out of the picture? So middleman जो भी APMC में बैठते हैं, middleman, उनको कौन रोक रहा है कंपनीज और उनके बीच में ट्रांजैक्शन करने को? कंपनी कौन से डायरेक्टली फार्मर्स के खेत पे आने वाली है? मिडलमैन तब भी रहेंगे। हाँ, not completely, but तब शायद उनका कमीशन बढ़ जाए क्योंकि कंपनी से ज्यादा कमाएंगे वो, और ज्यादा मार्जिनाइज करेंगे। नहीं यार, वो इट्स नॉट मोटिवेटेड। दिस सिस्टम का डिपेंडेंस लाइक हरियाणा और पंजाब में ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वहां से आए हैं। आप मतलब यू हैव नॉट सीन वेरी लार्ज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट। द प्रोटेस्ट हैज मेनली बी फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, राइट? अब तुमने थोड़ी देखा वेस्ट बंगाल के फार्मर्स थोड़ी सड़कों पे आ रहे हैं, या फिर बिहार के या झारखंड के, बिकॉज बिहार का तो अलग ही सीन है, फॉर एपीएमसी अबॉलिश्ड है, बट अदर स्टेट्स में उतना मतलब हुआ है प्रोटेस्ट, बट इट इज नॉट एज द बिग स्केल एज हरियाणा एंड पंजाब, बिकॉज पैडी प्रोडक्शन और व्हीट प्रोडक्शन जिस पे एमएसपी मिलता है वो सबसे ज्यादा इस मतलब वो काफी। हाँ, और जो 6% फिगर है, that is also 6% farmers who get MSP for their prices. That is also very focused on these North Indian states. Okay, so moving beyond this first bill, let's talk about the second bill that was passed. So second bill was about contract farming. Essentially what this bill states is that the farmers can get into long-term agreements with agri-firms, exporters, large buyers, etc. to produce a cost for a fixed price. They can enter into a contract for a duration of a year. Now again, this bill has both positives and negatives. Positives इसके ये हैं कि अगर मान लो मैंने, मेरी दुज्जू आटा कंपनी है, मैंने किसी फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारा 1 क्विंटल गेहूं खरीदूंगा 2000 रुपए के भाव पे। यूजुअली क्या होता था, अगर किसी टाइम पे बहुत ज्यादा बम्पर क्रॉप हो जाती थी तो उनके प्राइसेस नीचे आ जाते थे अगले साल, यहाँ पे फार्मर्स को नुकसान होता था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मुझे श्योरिटी है इस चीज की कि मुझे हर साल 2000 रुपए पर क्विंटल का भाव मिलेगा। But the flip side of this bill is now there is no surety that the fixed price will be at the MSP. मान ले 2000 रुपए का MSP है, कोई कंपनी ज्यादा टाइम के लिए 1600 रुपए में भी डील करने की ट्राई कर सकती है, and again marginalized farmers will be succumbed into agreeing to that deal.
why won't a farmer be like no मैं 1600 में नहीं बेचूंगा, मैं गवर्नमेंट को बेच दूंगा MSP पे? जब मंडी सिस्टम नहीं है, जब मंडी सिस्टम इधर अबॉलिश हो रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली, जब मंडी सिस्टम ही अबॉलिश हो रहा है तो मंडी बचेगी नहीं. Yeah, it does not seem as simple as it sounds, as you are saying. I mean, I don't mean to be disrespectful, but it is not simple as it sounds कि जाके बेच देगी, because there is a lot of things on the ground which happen. I mean, I have very limited experience of APMCs, like because I've worked in a certain context for only 1 or 2 months. But from what I know, there it is ये जो द्विजेंद्र का पॉइंट था कि मंडी रहेगी ही नहीं तो बचेंगे कहाँ, ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट को बेचना इट्स नॉट इजी, क्योंकि यार एक बार कॉर्पोरेट सीन में आ जाता है ना, देन नोबडी केयर्स. जैसे वो बम्पर क्रॉप वाली बात कर रहा था, मैंने कितने केस, मतलब इतनी स्टोरीज में देखी हैं और पढ़ी हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स यार, कि फार्मर्स हैव लाइक सोल्ड देयर क्रॉप फॉर 50 पैसे अ किलो. टोमेटो दे हैव सोल्ड 50 पैसे अ किलो, और साला वो मार्केट में बिक रही है 80 रुपए किलो. लॉजिस्टिकली बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं छोटे फार्मर्स को, सो दे विल बी सॉर्ट ऑफ फोर्स टू अग्री टू द प्राइसेस दैट द कंपनी इज ऑफरिंग देम. अब कंपनीज के प्राइसेस ऑफरिंग में भी दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं. या तो या कि बहुत ही गुड इंटेंशन कंपनी है, उनको फेयर प्राइस देती रहेगी, या फिर तो फॉर जस्ट अमेज़न का एग्जांपल ले, ठीक है. 7-8 साल पहले अमेज़न इंडिया में आया था. इनिशियली हर चीज़ की डिलीवरी फ्री, भयंकर डिस्काउंट होते थे हर चीज़ पे, कोई मिनिमम ऑर्डर गारंटी नहीं होता था, ठीक है. 2-3 साल बाद उन्होंने डिलीवरी प्राइसेस लगाने शुरू कर दिए. उसके बाद क्या, अमेज़न प्राइम खरीदो, प्राइम पे डिलीवरी फ्री है. अभी इस टाइम पे प्राइम पे भी तुम्हें एक मिनिमम ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद फिर तुम्हारी डिलीवरी होती है. अब जिस तरह जियो मार्ट की बात कर रहा था तू, जियो मार्ट क्या करेगा, इनिशियली उनको एक डिसेंट प्राइस ऑफर करेगा स्टार्टिंग में. कैश बर्न मॉडल है, राइट. हर इन सब का कैश बर्न मॉडल, वो तो आई थिंक रियलिटी है ही है. मतलब ओला से सबने सीख ही लिया है. हाँ, ये इन सब से भी कोई गारंटी नहीं है कि 4 से 5 साल के बाद उन लोगों को इसके आसपास भी कुछ प्राइसेस ऑफर हो रहे होंगे. सो जियो मार्ट विल हैव टू कम्पीट विद सर्टेन कंपटीशन प्लेयर्स आल्सो. दे विल हैव टू ऑफर द लोएस्ट प्राइसेस टू द एंड कंज्यूमर, राइट. लोएस्ट प्राइसेस ऑफर करने के लिए क्या करेगा, कहाँ कौन मार्जिनलाइज होगा, फार्मर्स मार्जिनलाइज होंगे, फार्मर मार्जिनलाइज होंगे. हाँ, ठीक है. एंड में भुगतना पड़ेगा फार्मर को अगर ये तुम्हारा कॉर्पोरेट वाला स्ट्रक्चर आता है, बिकॉज एवरी कॉर्पोरेट विल ट्राई टू कम्पीट टू ऑफर द लोएस्ट प्राइसेस टू द एंड कस्टमर, है ना. वहां पे सबसे बड़ा, सबसे नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ तेरा फार्मर का. फिर से यही डिमांड है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में भी एमएसपी को लीगल करके लिंक कर दो. वी आर ओके विद इट, जिसके लिए भी गवर्नमेंट रेडी नहीं है. सो देयर आर बोथ पॉजिटिव्स अबाउट दिस बिल एंड नेगेटिव्स अबाउट दिस बिल एज फार एज इम्प्लीमेंटिंग कॉन्वर्सेशंस आर कंसर्न्ड. एंड यूजर के लिए कम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एंड यूजर जो कि हम हैं, एंड यूजर कौन है, मैं तू और विवेक है. अब हमें कल की डेट पे जैसे ऑनियन की प्राइस जरा सा भी बढ़ जाते हैं तो भैया गवर्नमेंट हैज टू फेस इट पॉलिटिकली, एंड फिर वो होलसेल इन्फ्लेशन इंडेक्स और वो सब जो चीजें होती है CPI VPI वो भी बढ़ता है. तो द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड दिस. सो अल्टीमेटली इवन नाउ द फार्मर इज सफरिंग, राइट. तो in any case, जब private company which will always strive to sell it at the lowest cost, it will exploit it out of the farmers only, no end में. जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसमें मतलब ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है. देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड मतलब जो अभी तक हमारे एग्जांपल्स रहे हैं, बिहार में दे हैव बीन गेटिंग लोअर अमाउंट जितना उनको पहले मिलता था उससे. लेकिन मैं तो आई एम इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन बिकॉज आई एम इन फेवर ऑफ फ्री इकोनॉमी, ठीक है. कि और इतने सालों से लाइक फॉर द पास्ट 70-80 इयर्स, जब से हम 70 इयर्स हम इंडिपेंडेंट हैं, दिस सेक्टर हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट. सो आई थिंक इट इज टाइम टू experiment with something new. See, if we were 5 there will be private investment, there will be. If we were 5 to 6 years ago, I would have been on board with your train of thought. ठीक है. Because at that time we were actually seeing a competitive market. Telecom players, for example, कितने होते थे यार. एयरसेल होता था, डोकोमो होता था, तो याद है. 14 से लेके 3 हो गए हैं. फिर एक मतलब 8 डोकोमो होता था, वैसे 14 अच्छे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स थे. अब वो 2 या 3 रह गए, ठीक है. सो अगर 5 साल पहले होते, हम ये 5 या 6 साल, तो शायद मैं तेरे ट्रेन ऑफ थॉट के साथ अग्री करता. बट द प्रूफ इज इन द पुडिंग. द ओवरवेलमिंग प्रेजेंस ऑफ फैक्ट्स ओवर द लास्ट 6 years इज दैट द मार्केट इज नॉट अ फ्री मार्केट एनीमोर. अब ये गवर्नमेंट कुछ भी करेगी तो मतलब वेदर इट इज इन द राइट डायरेक्शन तो भी वी कांट ट्रस्ट इट. मतलब yes, actually it is true. मैं और एक एग्जांपल देता हूं to explain my point. जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है ना? हाँ. नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड का uniform civil code is a set of laws which apply, so that the same set of laws related to marriage apply to everyone. जैसे Muslims में Muslim personal law apply जिसमें man can marry, have 2-3 wives.
तो उनके लिए वो लॉ अप्लाई होता है. हिंदूज में you can marry only one technically, but of course people do. But if you see debates around the 50s, 60s, 70s, feminists have always supported a UCC. Feminist का मतलब feminist researchers जो prominent activist है, but वो currently अभी नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि they don't trust the government कि वो लोग वो बोलेंगे कि वो अपना हिंदुत्व एजेंडा हिंदुत्वाइजेशन करेंगे इस लॉ से. And the same set of people who supported UCC initially, but they are not supporting it just because it will be done by BJP and their agenda will be more of a Hindu rather than equality. I agree with UCC. कि सबको equality वाला फंडा है, लेकिन same set of feminists who had who supported ये say कि we oppose it because we don't trust the BJP कि उनका एजेंडा हिंदुत्व होगा rather than equality of women. हाँ तो हाँ यार, I think this just brings us back कि ये जो मतलब baseline problem ही बन गया है of trust in the institutions. अभी हम उसी की बात तो कर रहे हैं. See, the intent that they're telling us might be right, but the evidence of over the last 6 years forces us to be skeptical about the intent as well. जैसे वो मोदी बोल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, अब हो सकता है इंटेंट बहुत अच्छा भैया, ऑन पेपर इट कुड बी अ ब्रिलियंट लॉ. GST was a good law, but it was implemented very badly. So there is no, I do not trust the government on anything. So I would not trust the government to do even good right, like even do the right set of things in a good way. या हाँ, ये तो यार मेरे को लगता है कि बीजेपी का ये प्रॉब्लम तो है कि दे आर वेरी गुड एट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप कि बस ये कर दो, लेकिन दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू नेक्स्ट. कि बस हाँ ये करना है तो बस हाँ मतलब तुम लॉ पास कर दो और कर दो, उसके बाद पता नहीं क्या करना है. मतलब I would say कि they don't do evidence policy making कि भैया कर दिया उसके बाद देखेंगे होगा. हाँ आराम भरोसे उसके बाद होता रहेगा कि टेररिज्म खत्म होगा जेएनके में, वो हो जाएगा अपने आप, लेकिन तुम कर दो पहले. कोई उस पे कोई रिसर्च नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं है कि व्हाट कुड हैपन. दे जस्ट थिंक कि दिस इज देयर लाइन ऑफ थॉट कि दिस इज व्हाट आई विल डू, एवरीबॉडी हैज टू एग्री विद इट. एवरी एग्री विद भैया. उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस है हमें कुछ नहीं करना है, हम जयराम जी की करके निकल लेंगे. आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड मेजॉरिटेरियनिज्म. कि अभी जो होने लग गया है वो मेजॉरिटेरियनिज्म होने लग गया है. So the third bill that we have missed speaking about is the Essential Commodities Act. मोटी भाषा में hoarding. अभी ये बिल क्या बोलता है? This bill allows economic agents to stock food articles, to hoard food articles without the fear of being prosecuted for hoarding. Now hoarding होती क्यों थी और उससे क्या फर्क पड़ता था? मैं एक मिडलमैन हूँ, मैंने इस साल डिसेंट क्रॉप हुआ, मैंने बहुत सारा अपने पास सामान होल्ड कर लिया. अगले साल जब फार्मर मुझे बेचने आया सामान दोबारा, तो मैंने उसको बोला मेरे पास तो ऑलरेडी पिछले साल का बहुत सारा पड़ा हुआ है, मैं तेरे को कम प्राइस दूंगा अगर तेरे को मेरे को बेचना है तो, नहीं तो मैं तेरे से नहीं खरीदता. ठीक है, दैट वाज होर्डिंग. नाउ व्हाट दिस लीड्स टू आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशंस सीजन टू सीजन. जैसे ऑनियंस में हर साल आप देखोगे ऑनियंस या टोमेटोस हर साल में एक टाइम जरूर आता है कि साला ये प्राइस बढ़ेगा 80 रुपए किलो. हाँ राइट, दैट इज बिकॉज ऑफ होर्डिंग. इसका क्या पॉजिटिव इंटेंट, इसका इंटेंट क्या है? मुझे इसका पॉजिटिव इंटेंट भी समझ नहीं आया. अरे मैं बताऊंगा क्या पॉजिटिव इंटेंट है. हाँ बोल भाई, तू हमारा डेविल्स एडवोकेट बैठा है इधर. क्योंकि इसमें एक्ट में क्या होता था दैट इफ यू आर होर्डिंग स्टफ तो द गवर्नमेंट कैन एक्ट अगेंस्ट यू. ठीक है, तुम लोग ठीक है, द गवर्नमेंट कैन एक्ट अगेंस्ट यू. सो व्हाट दिस बिल डिड वाज लाइक व्हाट दिस एक्ट डिड वाज दैट के पीपल वर अफ्रेड to invest in storage capabilities, क्योंकि this act does not differentiate between storage and hoarding. उन्होंने कोई differentiation ही नहीं डाला था. So people are afraid कि मैं store करके रखूंगा तो उनको लगेगा ये तो hoarding हो रहा है, तो that limited the supply chain. ठीक है, एक ये हो गया. And the second thing was कि economic survey में whatever data that they collected, जैसे onion ये सब था उसमें ECA में, and there were other stuff also कि उसमें जो भी commodities इसके अंडर थे ना, their prices increased more compared to the commodities जो इसके अंदर नहीं थे, which is quite ironical कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो that's why there was a recommendation and इसका ये हो सकता है ताकि हमारा supply chain better हो. To summarize the demands that the farmers are making officially, I'll try to summarize them in 4 to 5 points. Number one, all the farmers feel that instead of leaning towards the farmers, the government is trying to empower the corporates or companies, which is a sentiment that all of us have also shared so far, that if the implementation goes slightly haywire, it will benefit the companies big time and it will marginalize the farmers a lot. That is the first point that they made. Second point that they're making is they want
the government to legalize the MSP. They want it to become a legal right for all the 20 plus crops that are produced in the country. They want MSP to be legal, which is not the case right now. To be procured at MSP. अभी 2 या 3 crops procure होती हैं government से बस. So another point that these farmers have mentioned that the APMC needs reforms, but it does not need removal. Obviously, there are points to be improved there, but to do away with the APMC is not the right approach. Because they feel that the middlemen will anyways not go away. जो ये तुम्हारा बोला जा रहा है कि APMC में middlemen का ज़्यादा influence है, the middlemen will always exist because now the middlemen will act between the companies and the company. Yes. So the intent that the middlemen should be removed will not happen. The last point that they want the government to do was they should invest in the agricultural sector. A very, very small percentage of the GDP, 0.5 to 0.6%, is right now attributed to be spent in the agricultural sector. 50% population जिस country की agriculture में काम करती है, GDP का सिर्फ 0.5 या 0.6% is spent on agriculture. The farmers want to increase that ratio as far as government spending is concerned. We are free to form our own opinions. From a nutshell, from what I understand so far, the intent of most of the bills on paper seems to be positive, but there are a lot of negative connotations, which when we come to implementation, there is a lot to be worried about. And the trust level and the trust with the government specifically. People do not trust the government to do things. I mean, where is the more? And see, if the bill is good, right? अगर तुम्हें भरोसा है अपने बिल पे कि भैया बहुत अच्छा काम करेगा, तो भैया इस तरह से पास करने की जरूरत क्या है? डिबेट करो ना, उसको डिबेट करो, पार्लियामेंट में अच्छे से डिबेट करो, बोलो कि हाँ ये सही है, and then take everybody's consensus and kind of pass the bill. That also raises suspicion in my mind कि भैया इतनी गंदे तरीके से आप इतने undemocratic, unconstitutional way से you are trying to pass the bill. That also raises questions. So अब यार अब तो बात कर रहे हैं देवाने के इस बारे में कि कितना undemocratic तरीके से bills पास हुए हैं. Let us go a little more into detail and tell people who don't know कि हुआ क्या exactly. Do you want to take us through it? Yes. So of course in Lok Sabha BJP has a majority, so that's what that, and they had 303 MPs, so they didn't have a problem. In the Rajya Sabha, what the assumption was, because it does not have an individual majority, it has an NDA majority more or less, and some parties support it. जैसे बीजू जनता दल हो गया, YRS हो गया, TRS हो गया, फिर YSR Congress हो गया, ये लोग they support them on individual bills. So what BJP I think had a sense कि they did not have the required numbers, कि probably they wouldn't get the 50% pass mark on votes if they put the bill to vote. Now अकाली दल ने भी oppose किया था ना? हाँ, and then the bill was kind of ये तो they had a sense. अब क्या था, opposition MPs ने बोला कि let's have a division vote. Division vote in the sense कि what is a division vote? So division vote in the sense कि every MP gets to vote individually, कि मतलब कि and the numbers are displayed कि मतलब कि कितने लोगों ने कितना each vote is counted. Each vote is counted, and because वो मेरे ख्याल से वो मशीन होती है, मतलब जो भी बटन प्रेस करना होता है, yes or no के. हाँ, बटन प्रेस करना, yes or no. So the rule is if any MP asks for a division vote, the speaker is legally bound to conduct it. Yes. Right? Even if one MP asks for it. Even if one MP asks for it, the speaker is legally bound to conduct. Now, how this controversy came out into the picture was that Derek O'Brien, who is the Rajya Sabha MP for All India Trinamool Congress, he was seen showing the rule book in front of the speaker, etc. People said he was trying to tear the book, but an allegation. He refused. He was not. I saw it clearly. So now, what the speaker did to pass the bill, he took a voice vote. Voice vote, मतलब कि, which is actually a very stupid way. कि voice vote basically उन्होंने क्या किया कि वो पूछेगा कि कितने लोग हाँ हैं, कितने लोग ना हैं. तो उसने बोला कि इतने लोग हाँ हैं, तो he will and I and no's, ठीक है. तो उसने बोला कि भैया ayes की आवाज ज्यादा आ रही है, तो हाँ बिल पास्ड. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the motion is. ये बोला कि मतलब कि ayes नहीं, ज्यादा आवाज आ रही है वहां से, ज्यादा भैया शोर, जिसने बेसिकली अर्नब जीत गया, कि भाई जिसने चिल्लाया वो जीत गया. तो अर्नब का स्टाइल 1 year. एंड ऐसा कुछ था भी नहीं. The problem is कि जो footage दिखा है, and there's an Indian Express investigation people should study. It has been released 2 days back also. कि the footage show the speaker did not even look at the
look at the crowd and crowd in the sense MPs, ठीक है, कि आए कितने, तो इसने बस पास कर दिया. So that there is was something that not even a minute of difference that the speaker usually gives to listen to both the parties. He simply said, all those in the favor of the bill say aye. All right, the ayes are louder. The bill is in motion. That was the series of events. And let's add this point also, that the voice vote it's not an illegitimate form of vote. It is a recognized form of vote, but it has to be, it only taken when there is a general consensus on the bill. When the 90%, 90-95% people are in favor. हाँ, मतलब 90-95 में मतलब लोकसभा में हो सकता था, क्योंकि तुमको पता है कि हाँ मेजॉरिटी तो है. नहीं, लोकसभा में तो होता है, कोई इशू नहीं था, लेकिन जनरली में भी है कि अगर देयर जनरल कंसेंसस की सब एग्री करें, हाँ ठीक है, तो जरूरत नहीं है जबरदस्ती काउंटिंग की, तो आप नॉर्मल, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देयर इज अ कंसेंसस ब्रॉडली कि हाँ है, तो देन दैट कैन बी यूज्ड. सो इट्स नॉट एन इलेजिटिमेट, बट द वे इट वाज डन इज इलेजिटिमेट, कि मतलब कि बोल दे कि ज्यादा मतलब अर्नब स्टाइल में कि भाई यहाँ से, और द वर्स्ट पार्ट इज कि उसने देखा भी नहीं. The speaker kept on shouting that you can't ask for division unless you are in your seat, और किसी रूल बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको सीट पे होना पड़ेगा to ask division. नहीं, but they were in their seat. He said कि they were not in the seat. Again, the investigation found that they were in their seat. But the speaker did not bother to look properly. That is basically the speaker. The role of the speaker is that he has to be impartial. But clearly, जैसे तूने बोला कि बीजेपी का है कि बस हमें अपना decision bulldoze करना है. So that decision was bulldozed clearly in this session. Yes. मेरे को बस एक चीज बोलनी है for whoever is listening. थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में चेयरमैन होता है. So that chairman, okay, you have the right information. Chairman. So clearly you are preparing for UPSC. I am not. So this was clearly an undemocratic way of passing this bill, and that is why this commotion has come into such limelight, because it is clearly visible that the basic fundamental rights are being flouted, because the institution of the Rajya Sabha has been compromised. Yeah. और उसके अगले दिन ही उन 7-8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो इसको अपोज कर रहे थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया, एंड उनके सिर्फ बीजेपी वाले आए फिर अगले दिन, और अगले दिन मस्ती में बिल पास किए. So that is not, ये तो सही हुआ. That is not how a democracy is supposed to function. Yeah, they were like only 20 to 25 MPs probably present, and the whole opposition bench was empty, and that's how the bill and the FCRA bill, like a lot of important bills were passed. So that is completely, and these are bills that are going to impact us big time in the long run. Yeah, so basically you're impacting life of millions without, I mean, just bulldozing your way. Yeah. I think इसको ये सिचुएशन देख के फिर लगता है कि हाँ जो करना अब से we should go beyond. We'll wrap it up here, people. See, we have tried to be as objective about this topic as possible. You have seen both sides of opinion in this. Exactly. Podcast, so that's what the intent was. The intent was to try and give you as much information as possible about the entire scenario. Yes. How a bill is supposed to be passed versus how it was passed. What are the details of the bills? What are the pros and cons? We're not trying to shape your opinion or bend your opinion in any manner. It is entirely up to you how you want to interpret it. The best we can do is we can provide as much information as possible. If you like the content that we put out, do share it in your circles and do spread the word, because the information does need to be spread around as much as possible. And if you don't hear us from within a week, you can assume that we have been put under the NSA Act. उसके लिए तो हमको किसी काउ रिलेटेड क्राइम भी करना पड़ेगा हमको. और हम बहुत जल्दी कुछ ड्रग्स के ऊपर भी लेके आएंगे दोस्तों, क्योंकि उसके बिना तो जिंदगी चल ही नहीं रही है. People who are still listening to us, subscribe to us on all the various platforms that you are listening to us on. We are available on Spotify, Google Podcasts, YouTube as well. Don't forget to like the video on YouTube and subscribe to the channel as well. Hope you keep well, people. Until next time, keep taking it slow.